Assalamu alaikum, my beautiful viewers. Today I am here to discuss you about the fertilization, the process in which the egg and sperm get fertilized, get fused, and to form the zygote. As you know, the sperm come from the male and egg come from the female ovary from ovulation and came to the oviduct. स्पर्म कपलेशन के बाद मूव करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंड अपवर्ड मूवमेंट करता है देन फाइनली इट्स गेट क्लोज टू द विसिनिटी ऑफ द एग मीन्स द ओविडक्ट वेयर द फाइनल फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. कहने को सुनने में इट्स वेरी सिंपल कि एग एंड स्पर्म गेट फर्टिलाइज एंड ज़ाइगोट बन गया, बट साइंटिफिकली in the depth study it will reveal this is an complex process with complexity stages are here in which you can see the sperm also play role and egg also play role. Fertilization is a kind of complex process in which the multiple complexity will be arise after the revealed study of the fertilization in mammals, whatever in mammals, in other group of fertilization. हो सकता है कि एक्सटर्नल हो एंड इट्स ऑल्सो चांसेस इट्स विल बी द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. We are studying about the fertilization. First, we will discuss about the structure of sperm and ovum. As you know, here the sperm with three parts: head, middle piece, and the tail. The head contains acrosome, in which the nucleus and neck is present, and also the centriole present. जिसने जो when you cut the flagellar part of the sperm, the dissection area will reveal about the structure in which the plasma membrane is present. Radial spokes are here. Microfilaments 9+2 doublet structures are present which contain the further 11 and 13 प्रोटोफिलामेंट्स दैट्स आर मेड अप फ्रॉम द ट्यूबुलिन, और जो एक दूसरे से ये बाइंड हुई होती हैं बाय द हेल्प ऑफ providing proteins are here. Also it's contain the dynein. Dynein are very important. These all are exonames and contain the this structure is called the dynein and helps in the movement of the flagella. And finally flagella की प्रोवाइड की जा रही थी जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था. जैसे उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाले इन्वायरमेंट से निकाला जाता है, उसकी डायनिन जो है वो Dynein change the chemical energy into the mechanical energy that's come from the mitochondria. जो माइटोकॉन्ड्रिया इनको एटीपी प्रोवाइड करते हैं, उनको हाइड्रोलाइज करने के बाद डायनिन जो है केमिकल को मैकेनिकल में चेंज करती है एंड इनकी टेल मूव करती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म इज़ मोटाइल स्ट्रक्चर. सारी सी बात है कॉपुलेशन के बाद जब इसने ओविडक्ट तक मूव करना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में से, तो इसको मोटाइल होना ज़रूरी है. देयर इज़ a process in which the multiple and millions number of sperms are here and इसको जो है वो मूव करके एक की विसिनिटी में जाना पड़ता है. Lack of dynein will result in the multiple disorders. First is the respiratory disorder. लोगों में डायनिन की जो है प्रेजेंस नहीं होती, उनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. इवन अगर मेल में डायनिन प्रेजेंट नहीं है उसकी स्पर्म में, तो वो मोटाइल नहीं हो सकता, वो मूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि वो मेल स्पर्म प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन वो वहाँ पे जो है मोटाइल नहीं है और स्टीराइल है, फर्टिलाइज नहीं कर सकता वो एग को. This disorder is called as the Carter-Jenner disorder, in which the sperm will not motile and men can call as sterile and cannot fertilize the egg ovum. For the further discussion of the fertilization, here the topic is about the ovum, in which the structures are here: the zona pellucida, vitelline membrane, nucleus, follicle cell of corona radiata, and the cytoplasm is here. Okay. सो यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन फॉर द प्रिवेंशन, अगर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो जो एग है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में आउटसाइड द बॉडी मूव करते जाते हैं, मोस्टली द एक्वस इन मीडियम लाइक इन एम्फीबियंस एंड और फिशेस, जिसमें जो है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो है हार्म एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचे रहें. ऑल्सो ये ऐसा मटेरियल प्रोवाइड रिलीज़ करते हैं कि अगर इन्हें प्रीडेटर इनगल्फ कर ले या उनको स्वेलो करने की ट्राई करे तो जो है टेस्टलेस मटेरियल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से इनको प्रीडो इनको
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हार्म से बचाती है। दीज आर सच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। ऑल्सो इट्स कंटेन द फ्यूजोजेनिक रिसेप्टर्स। अगर तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो वहाँ पे विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी एट द प्लेस ऑफ जोना पेल्यूसिडा। बट अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, दे कंटेन द जोना पेल्यूसिडा। Type of the structure in the ovum called as the cortical granule, called as membrane bound organelle located in the cortex of the unfertilized oocyte. अब ये क्या करता है, पोलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है बाय the modification of the oocyte extracellular मैट्रिक्स सच एज जोना पेलुसिडा इन द मैमल्स, और इसको स्टिमुलेट करने के लिए स्पर्म का आना ज़रूरी होता है। जो है हमने स्ट्रक्चर्स की बात किया। We are discuss about the structures of the sperm and the egg definitely, क्योंकि उन्होंने फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करना था। अब हम इसके रिकग्नाइजेशन ऑफ द एग टू द स्पर्म की बात करते हैं, विच अकर इन द 5 स्टेप्स। द फर्स्ट इज द केमिकली रिकग्नाइजेशन। These chemicals are released by the egg that closed to the sperm and directed it toward itself. The second is the exocytosis. एक्सोसाइटोसिस, जब जो है स्पर्म जो है आपकी जेली के साथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें हम सिचुएशन में, तो जब जेली के साथ कांटेक्ट करता है तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ख़ुद को जो है वो पॉलीमराइज एक्टिन पॉलीमराइज करने लग जाता है। नीडल थर्ड में जाता है, एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है और अपना मटेरियल जो है वो रिलीज़ कर देता है जब ये कांटेक्ट करता है विटेलाइन के बाद की हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, यानी कि मोटिलिटी जो है वो बड़ी फास्ट कर लेता है। फिफ्थ में पेनिट्रेशन ऑफ जेली लेयर एंड विटेलाइन इन्वेलप के अंदर ये अपनी पेनिट्रेशन को रन रहा है, तो ये अंदर अच्छे तरीके से मूव कर जाता है। एंड द 6th पॉइंट, एग एंड स्पर्म मेम्ब्रेन फ्यूजन। क्या होता है कि जैसे ये एग की मेम्ब्रेन को पकड़ता है, ये फ्यूजन कर जाता है, उसको उसकी लाइसिस कर देता है। उसके बाद अपना मटेरियल जो है वो एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस इनटू द एग। क्या होता है, स्पर्म जो है वो अपना मटेरियल मूव कराता है और इसके बाद का काम जो है वो ग्रेन्यूल का है कि एक स्पर्म तो एंटर कर गया, दूसरे स्पर्म्स बाहर जो मिलियंस की नंबर में प्रेजेंट हैं एट 200 जो है वो मूव कर रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो उनको स्टॉप करना होता है। तो स्पेसिफिकली सी अर्चन में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो सबसे पहले जो है आप इसके स्ट्रक्चर को देखो, और वो कहता है कि विटेलाइन इन्वेलप। सबसे पहले तो जेली होती है ना, जैसे ही जेली को कंटेक्ट करता है तभी से इसका एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और एग जेली स्टिमुलेट द स्पर्म एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड में क्या होता है, एक्रोसोम रिएक्शंस में फ्यूजन ऑफ द एक्रोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन रिलीज द एक्रोसोम कंटेंट्स आयनिक चेंजेस फॉर्म एक्रोसोमल प्रोसेस। ठीक है। अब थर्ड में डाइजेशन ऑफ द जेली। अब जो जेली को कंटेक्ट कर रहा था उसको अब वो क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास प्रोटीटिक एक्सपोज्ड स्पर्म मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द एग रिसेप्टर। स्पर्म के पास ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसका रिसेप्टर जो है वो एग की मेम्ब्रेन के पास होता है। ओ साइड की मेम्ब्रेन को अब ये टच कर रहा है। ठीक है। जैसे ही वो ओ साइड की मेम्ब्रेन को टच करेंगे, ये उसकी लाइसिस कर देंगे। लाइसिस कब होगी, जब उसकी मेम्ब्रेन को टच करेंगे। लाइसिस करके अपना मटेरियल अंदर करेंगे, और जितना भी ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स है वो इंक्रीज करते जाते हैं जो इनसाइड द ओ साइड। अब जो है आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, लेकिन ये एक स्टेप में नहीं बल्कि 5 स्टेप्स में टेक प्लेस हुई है। एक्सटर्नल या जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं हम। एक्सटर्नल में जो है वो क्लस्टर ऑफ एग्स आर रिलीज्ड आउटसाइड, और एग भी जो हैं, जो स्पर्म हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो है वो विच काइंड ऑफ स्पीशी आर रिलेटिव टू दैट स्पेसिफिक एग। तो वो जो है वो एग ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है जो उसको मेक श्योर करता है कि वी आर हियर एंड यू आर द स्पेसिफिक स्पीशीज़ दैट्स वी रिलेट। अगर हम इंटरनल की बात करते हैं, तो जो स्पर्म है वो मूव करता है, मोटिलिटी करता है, वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव करता है। उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव करने के बाद उसको कैपेसिटेंस का सामना करना पड़ता है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म जो है वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं, और वो मैनी डेज तक जो है वो वहाँ पे सर्वाइव करता है, मेच्योर होता है, एंड देन टू फर्टिलाइजेशन के लिए वो कैपेबल हो जाता है।
Now it's close with the fertilization. This all was the topic about the fertilization कि कहाँ से जो है स्पर्म और एग ने फ्यूज़ करना था, उनका ट्रैक क्या था और उनके प्रोसेसेस कैसे थे, कॉम्प्लेक्स था, सिंपल था, कैसे स्पर्म जो है एग को रिकग्नाइज करता है एंड कैसे जो है एग सिग्नल देता है एग को, स्पर्म को, कि वो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं. Thank you for watching the video and please like and share the video if you